This is Dr. R.C. Saxena, and we are starting the course in the subject of pharmacology, which is one of the very important branch. And pharmacology is a branch, which deals with the drugs basically. And there is no doctor, maybe of different system of the medicines, they have to use the drug, whether they are paramedical staff or they are medical staff or they are dentist. So today I will talk to you about the sources of the drug. Now, as far as the sources of the drugs are concerned, हम कहाँ हैं? हम इस धरती पे हैं, ऊपर हमारे बहुत बड़ा आकाश है, फिर मेरे पास जमीन पे नीचे धरती है, और धरती के नीचे जो है पाताल लोक है, जहां पर समुद्र है। तो हम इन्हीं चीजों से तो ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि हम स्वयं हैं, हम स्वयं जो हैं, God has created human being like anything, nobody's brain has got so much developed as in the human beings. Let me see what are the sources. For example, we go to the air. Air में क्या है? Atmosphere में you have got oxygen, you have got many other gases, but oxygen is one of the very important source. And oxygen is used as a प्राण वायु। जब आदमी मरता है, जब आदमी में काम नहीं होता है, कोरोना से सफर कर रहा है, कोविड से सफर कर रहा है, उसके सांस नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि वी यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अभी देखो मैं बताऊं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स लाइक द नीम। सो दिस इज वन सोर्स। नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज द लैंड रिसोर्सेज. And here I told you that there are a large number of the things which are available here. For example, you have got the herbs, you have got the plants, you have got the flowers, you have got the seeds, then you have got the bacteria, you have got the fungi, you have got actinomycete, then you have got the fungus, जो फफूंद है, and then you have got large number of the animals from which you can obtain the drugs. So let me see what are the drugs which are there. For example, I am talking to you about the drugs obtained from हर्बल ओरिजिन। सबसे पहले जो थी, 100 साल से भी पुरानी बात है कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ड्रग को एट्रोपा बेलेडोना से निकाला, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द एट्रोपिन। सिमिलरली डिजिटैलिस, which is being used as a cardiotonic drug, is also obtained from Digitalis purpura. Then you have got similarly many drugs are there which are in the Ayurvedic system which you are reading nowadays. कि आपके पास तुलसी है, आपके पास अश्वगंधा है, आपके पास गिलोय है, और इन चीजों से तमाम नई नई दवाएं बन गई हैं जो कोविड में भी इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। Then it is of bacterial in origin. बहुत से एक्टिनोमाइसिटीज हैं, बैक्टीरिया हैं। एक लड़की थी, उसको पस था, तो उसकी बोनी पस से उन्होंने बेसिट्रासिन निकाला। तो यू कैन सी दैट दिस बेसिट्रासिन is obtained from the bacteria. Now then there are a large number of the other drugs which are being obtained from the fungus. जैसे penicillin is obtained from Penicillium notatum. इसी तरह से फेलोस्पोरिन्स हैं, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, which can be obtained from the fungus. Then you have got the animal source. For example, अभी तो recombinant DNA technology से we are getting the insulin from the human being for the human usage. But otherwise, earlier, we were getting the pork insulin. And this I will be talking to you when I will talk to you about the diabetes mellitus as this treatment. So these are basically the sources from the land. Now, then you have got the sources from the water. I told you, किसी ज़माने में जब सागर मंथन हुआ, तो सागर मंथन के बाद उसमें तमामों रत्न निकले, तमामों औषधियां निकली, धन्वंतरी निकले जिन्होंने आयुर्वेद सिस्टम को ओरिजिनेट किया। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि वहां से निकलती हैं, जो आपके कॉन्ग्स है, शंख हैं,
बहुत सारी चीजें हम प्रबाल भस्म है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें जो है वो हम समुद्री चीजों से ही बनाते हैं. Nowadays, we have got the Department of Oceanology, which is discovering drugs, and there are many drugs which have been found to have antiviral activity, antibacterial activity, and so on and so forth. So these are basically the three sources. एक आपने नभ से लिया, एक आपने पृथ्वी से लिया, धरा से, और एक आपने जो है वो नीचे पाताल लोक से लिया. Now then you are yourself very important. And कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर सकता है. आपके तन है, आपके मन है. कहते हैं कि अगर आप मन को कंट्रोल कर लें तो आपका तन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है. और मन में वो शक्ति है, वो आत्मिक शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है. अगर आपको उत्साहित कर देते हैं तो लोग मैदान जंग में जाकर के जीत आते हैं युद्ध को. लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी कोई खराब कर दे तो आपका जीवन बहुत ही दूभर हो जाता है. यहाँ तक कि लोग सुइसाइडल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसलिए मन को हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है. और आज हम जानते हैं कि लोग कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा. अगर आपका मन ठीक है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपके पास बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं. बिकॉज दैट हैज गॉट ए वेरी ग्रेट कंट्रोल ऑन द सिस्टम ऑफ योर बॉडी. तो मैन ने क्या किया कि इसी चीज को लेके जादू किया, टोना किया. तो देयर आर मेनी साइकोथेरेपिस्ट हु हैव बीन बॉर्न. और अभी ऐसा है कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड. अभी देखो कोविड भी हुआ तो भी लोगों ने प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए क्या किया कि थालियां बजाई, उनको रिस्पेक्ट दिया, नभ से फूल फेंके. So this is also one of the very important things to keep up your psychology so as you can exist in the system, in a very well way. फिर क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो कि सब कुछ कर सकता है. उसके पास सबसे ज्यादा दिमाग है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स एंड अदर नेचुरल लिविंग पीपल, पर्सन्स. तो हमने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रोपिन है, उसने एट्रोपा बेलेडोना से एट्रोपिन निकाली, फिर उसके डेरिवेटिव निकाले. इसी तरह ओपियम है, ओपियम एल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफीम. तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है. आपका खाना, आपका पीना, आपकी दवा, आपका जीने का सहारा, आपको ऑक्सीजन. तो ओपियम सबसे पहली दवा थी जो कि बहुत ज्यादा दर्द अगर किसी को होता था तो इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉर्फिन. तो मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम प्लांट. इसी तरह से डिजॉक्सिन डिजिटैलिस है, एक ड्रग है जो हम हार्ट में यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए कार्डियोटॉनिक ड्रग, एंड दिस डिजॉक्सिन इज अगेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द प्लांट्स. इसी तरह से रिजर्पिन है, राउल्फिया अल्कलॉइड है, राउल्फिया सर्पेंटिना पहाड़ों पे मिलती है. और ये ड्रग जो है बहुत वर्षों से यूज की जाती है दो चीजों के लिए. एक तो है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, और दूसरी जो है वो आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए, मेंटल फैकल्टी को कंट्रोल करने के लिए. इसी तरह की न जाने कितनी दवाएं ऐसी हैं जो ह्यूमन बीइंग ने नेचर से प्राप्त की और उससे आइसोलेट किया. और आइसोलेट करने के बाद उसने बहुत सारी सिंथेटिक ड्रग बनाई उसी तरह की. और उन सिंथेटिक ड्रग में उसने कुछ चीजें और ऐड कर दी. जैसे आप स्त्री हो और आप कभी कुंडल पहन लो तो ज्यादा सुंदर लगते हो, हैं. तो ऐसे ही उसमें भी चेन्स हैं, तो उन चेन में आपने कोई चीज लगा दी तो वो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव बन गए. तो सिंथेटिक बने, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव बने. और आज तमामों ड्रग्स ऐसी हैं which are being obtained from this methodology. So I am sure that you must have learned today that how the drugs are obtained from different sources. अभी देखो ह्यूमन बीइंग से ही जो आपका प्लाज्मा है उससे हम एंटीबॉडीज निकाल रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड, बिकॉज दैट कंटेन्स a good amount of the antibodies, and these antibodies are automatically produced by the subclinical infection of the bacteria or virus. Okay, now I'll explain to you a little more about it.
So you have seen that there are a large number of the drugs which are available for the treatment of many diseases, and these are obtained from different sources. And I told you that the sea is the source, atmosphere is the source, land is the source. But during the last 8, 9, 10 decades, there has been large number of the technological advancement in various fields. And therefore, the man was capable of making the drug, synthesizing the drug. And today, market is flooded with a large number of the drugs. But the drugs which have been obtained from the natural sources is like the opium, digoxin, atropa, belladonna, balefon. Chalmogrel was used in our country for the treatment of the leprosy, and all have been the boons from the Almighty only, from the God. ये भगवान की देन है, खुदा की देन है कि हमारे पास तमाम नेचुरल चीजें हैं और उन्हीं से हमने तमाम अन्य सिंथेटिक चीजें बनाई जो कि मार्केट में अवेलेबल है. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी कि ऑक्सीजन है या सी से है, उसके अलावा एनिमल फंजाई से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, and human source I have just talked to you about, that is exploiting the psychology of the person, as well as there are synthetic drugs. Okay, so I hope you have understood the basics of getting these drugs from different sources, and two of them non-synthetic sources, the plant, the animals, and the sea, as well as from the air. And then you have got the synthetic sources from the human being. Okay, thank you very much. I hope you have understood. If there are any questions, you can ask me.